Hi guys, welcome back to my channel. Today I will discuss on the topic of valuation. I will explain many important concepts of valuation with examples. So after watching this video, you will find this topic very easy. I have covered the basics of valuation in this video. Let's start with it. By definition, valuation is the technique of estimating the fair price of any property, land, machinery or any other asset. It is very important to find out the fair price of our asset as its value may increase or decrease due to its use, wear and tear or any other factor. There are many examples. For example, there is a variation in the rate of the flat prices in Mumbai and Pune. Take the example of machinery or equipments. Their value always decreases due to their use, wear and tear or invention of a new technology. If you have a barren land today, its value is very less. But if you do agriculture on it, if you plant crops, its value increases. Many of us have confusion between the cost and the value concepts. It's very easy. Cost is the original cost of construction or purchase which is always constant. And value is the present or the sellable value. It may be higher or lower. अब हम देखेंगे कि वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, क्यों वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी. सपोज यू आर सेलिंग योर फ्लैट. ऐसे ही कोई भी सेलिंग वैल्यू नहीं बोल सकते उसका. यू नीड टू चेक व्हाट इज द पर स्क्वायर फीट रेट ऑफ द एरिया. देन यू कैन ऐड योर ओन प्रॉफिट इनटू इट and then you will claim the price of it. Next is taxation purpose. म्यूनसिपल टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो और कोई अदर टैक्सेस हो, उनका एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है एज पर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज लोन सिक्योरिटी. वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोन सिक्योरिटी. Whenever you apply for a loan in a bank to buy a property, bank will always verify its actual value. कि इतने वैल्यू का है वो एसेट है या नहीं. देन ओनली इट विल सैंक्शन योर लोन. नेक्स्ट इज रेंट फिक्सेशन. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन फॉर दिस. अदर इम्पॉर्टेंट इज इंश्योरेंस. किसी भी एसेट को इंश्योर करना हो तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मे बी द इंश्योरेंस ऑफ योर कार और योर मशीनरीज और एनी अदर एसेट. We will deal with various types of values. Let's start with the market value first. Market value by definition is the amount which can be obtained at a particular time from the open market if the property is put in sale. Example, you are selling your asset. You can either have profit or you can face losses, or either there is no profit or no loss. The whole condition depends upon the condition of the market, that is the present value of the market. There are various reasons or various factors on which there is a fluctuation in the market value. First is the demand and supply. When the demand increases, supply also automatically increases or vice versa. Next is the cost of materials. For example, steel का प्राइस में अचानक से इंक्रीज हो गया तो पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाता है. Next is the major change in industry. When there is invention of a new technology or a new practice of construction, then there is a fluctuation in the market value. Next is change in the rules and regulations. When government introduces new law or there is any change or any revision in the laws. For example, जब GST इंट्रोड्यूस हो गया था तो पूरा मार्केट में बहुत वेरिएशंस आ गया था. और अदर एग्जाम्पल इज द रेरा एक्ट. Next example is the next condition is the natural calamity or pandemic. Presently, whole world is facing this pandemic crisis due to coronavirus. पूरा market fluctuate हो चुका है, पूरा market crash हो चुका है, and we don't know after coronavirus what is going to be the condition of the market. Next important values are the salvage value and the scrap value. ये दोनों भी वैल्यूज मैंने एक ही स्लाइड में ली है क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है. फर्स्ट इज द सैल्वेज वैल्यू, द वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल. आपका कोई भी एसेट है, उसका लाइफ खत्म होने के बाद, उसका यूज होने के बाद आप उसको सेल करते हो विदाउट ब्रेकिंग इट और डिसमेंटलिंग इट, तो आपको उससे जो वैल्यू मिलता है दैट इज द सैल्वेज वैल्यू.
एग्जाम्पल इज आपका जो ओल्ड रेफ्रिजरेटर है, व्हेन यू सेल इट यू गेट सम लिटिल बिट अमाउंट फ्रॉम इट, दैट वैल्यू इज द सैल्वेज वैल्यू. पुरानी बिल्डिंग है, आप उसको सेल कर रहे हो, जो रेवेन्यू उससे मिलेगा दैट इज द सैल्वेज वैल्यू. नेक्स्ट इज द स्क्रैप वैल्यू. इट इज द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटीरियल्स. एग्जाम्पल, एक पुरानी बिल्डिंग है, वो रीडेवलपमेंट में जा रही है, ऑब्वियसली उसको पूरी तरीके से वो डिसमेंटल होगी. डिसमेंटल होने के बाद जो भी मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स है, उसको हम सेल करेंगे. एग्जाम्पल, आपने स्टील, स्टोन्स, ब्रिक्स है, उसको सेल किया, कुछ तो वैल्यू मिलेगी, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट द स्क्रैप वैल्यू. सेकेंड एग्जाम्पल, वही आपका पुराना रेफ्रिजरेटर है, वो सेल कर रहे हो आप. सेल करने के टाइम पता चला पूरा रेफ्रिजरेटर ही खराब हो गया, बस उसका कंप्रेसर है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है. कंप्रेसर का जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैल्वेज और स्क्रैप वैल्यू इज, सैल्वेज वैल्यू इज पूरा का पूरा आपको वैल्यू मिलता है विदाउट डिसमेंटलिंग इट, और स्क्रैप वैल्यू है जो इंडिविजुअल पार्ट्स का होता है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सैल्वेज और स्क्रैप वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? यस, इट कैन बी नेगेटिव. एक एग्जांपल ले लो, आपकी बिल्डिंग है, आपको डिसमेंटल करनी है, अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, कॉन्ट्रैक्टर हैज कोटेड 30,000 फॉर इट, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, डिसमेंटलिंग खत्म हो गया, 30,000 आपने स्पेंड किए. अभी जब ये जो स्क्रैप है उसका, जब आप उसको सेल कर रहे हो, यू केम टू नो दैट इट इज जस्ट कॉस्टिंग ₹20,000. दैट मीन्स 10,000 you are facing a loss. So that 10,000 becomes negative and your scrap value or your salvage value becomes negative. डेप्रिसिएशन, हमारे पास जो एसेट है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे उसका यूज होता है, उसका वेयर एंड टेयर बढ़ता है, उसका रिपेयर बढ़ता है, इन शॉर्ट उसकी लाइफ कम हो जाती है. सो डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन, वेयर एंड टेयर, डीके एंड ऑब्सोलेसेंस. व्हाट इज ऑब्सोलेसेंस? एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स का. मोबाइल फ़ोन में तो भी एवोल्यूशन आ चुका है, जैसे जैसे नया मॉडल लॉन्च होता है वैसे जो पुराना मॉडल्स है उसकी वैल्यू कम होती है. अगर पुराने मॉडल का फ़ोन है, अच्छा खासा चल रहा है, बट स्टिल इट्स वैल्यू इज लेस क्योंकि नया आ चुका है, उसकी फैशन बदल चुकी है. अदर एग्जाम्पल इज द एलिवेटर्स. अभी नए ऑटोमेटिक एलिवेटर्स आए हैं, इसलिए जो पुराना एलिवेटर्स था उसकी भी वैल्यू कम हो चुकी है. सो ऑब्सोलेसेंस इज द आउटडेट इन द फैशन or design due to the change in the planning ideas or new invention or new technologies. So obsolescence is just a subtype of depreciation. What is the use of depreciation? Depreciation is used to find out the present value of the property. So the present value of the property equals to its original cost of construction minus the total depreciation. Next value is the book value. बुक वैल्यू, ये जो टर्म है वो अकाउंटिंग फील्ड में हमने सुना है. लेट्स चेक कि वैल्यूएशन में इसका क्या नेसेसिटी है. डेफिनेशन ऑफ बुक वैल्यू, इट इज द अमाउंट शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलाउिंग नेसेसरी डेप्रिसिएशन. सिंपल लैंग्वेज में किसी भी कंपनी के जो अकाउंट बुक में जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू बुक वैल्यू होती है. The book value of the property at a particular year is the original cost minus the depreciation up to its previous year. Book value equal to original cost minus the depreciation. Next important point is, at the end of the utility period of the property, book value will be equal to the scrap value. जैसे जैसे प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, डेप्रिसिएशन उसका बढ़ते जा रहा है, एंड जब प्रॉपर्टी की लाइफ खत्म हो जाती है, उसका यूज खत्म होता है, तो अकाउंट बुक में जो भी बुक वैल्यू रिफ्लेक्ट होता है वो बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर बन जाता है. दैट इज, एट द एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड ऑफ द प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू विल बी इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स स्टडी इट. By definition, it is the amount of money whose annual interest at highest prevailing rate will be equal to the net income from the property. This definition seems to be quite confusing. We will take one example and you will understand this whole definition properly. Suppose a person is selling his own restaurant
and you are interested in buying that restaurant. You need to decide whether this restaurant would be beneficial for me or not. This person also gives you one data that this restaurant will give you annual revenue of rupees 2 lakh rupees. Now what would be your first step? First of all, you need to decide what would be your rate of interest, your return from this restaurant. So you assume that I need 10% return from this restaurant. So 10% of X will be equal to 2 lakh rupees. Now X would be the cost price of the restaurant. So your X becomes equal to rupees 20 lakh. So if the person is saying the value of rupees 20 lakh or less than that, then you will accept the deal. It would be beneficial for you. And if he is saying more than 20 lakh rupees, you will either negotiate or cancel the deal. So this 20 lakh rupees is nothing but the capitalized value. I'll repeat this definition again so that you can understand. Capitalized value is the amount of money, मतलब हमारा 20 lakh rupees जो हम लोग ने find out किया था, whose annual rate of interest which is 10% जो हम लोग ने assume किया था, at highest prevailing rate will be equal to the net income from the property. Net income from the property ये data तो हमारे पास already available था. So capitalized value is the value on the highest rate of interest which will fetch you the annual income, that is 2 lakh rupees. जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल अभी लेंगे वापस. सो वी हैड इन्वेस्टेड 20 lakh rupees as the capitalized value and we wanted the rate of return as 10%. So let's check what is annuity. Annuity is the annual periodic payment for the repayment of the capital amount invested. अभी हम लोग ने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया रेस्टोरेंट के लिए 20 लाख रुपए और रिटर्न हम लोग को कितना मिल रहा है हर साल 2 लाख रुपए. So this 2 lakh rupees is nothing but our annuity. It is the annual periodic payment against the repayment of our capital investment. जो भी हम लोग ने इन्वेस्ट किया है उसको हम रीगेन तो करेंगे ही और ये जो रीगेन है वो हर साल का वो है एन्यूटी. नेक्स्ट इज इफ द एन्यूटी इज हायर लेसर द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर ये हमारी जो एन्यूटी है 2 lakhs इसके बदले में वो ज़्यादा मिल रही है हम लोग को, मतलब जो हम लोग ने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो हम लोग रीगेन जल्दी कर पाएंगे. इट मीन्स द एन्यूटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द years of investment. Next is the year purchase. ये भी बहुत easy है. It is the capital sum to be invested in order to receive an annuity of ₹1 at a certain rate of interest. अभी ये ₹1 का क्या फंडा है देख लेते हैं. So वही एग्जाम्पल लिया 10% of x is equal to 2 lakh rupees. अब ये जो 10% है ना हम लोग उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो x क्या हो गया, x is equal to 2 lakh into 10% का रेसिप्रोकल दैट इज 100/10. वापस अभी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. इन ऑर्डर टू रिसीव एन एन्यूटी ऑफ ₹1 मतलब जो 2 लाख रुपीज हमारा एन्यूटी हम लोग ने पढ़ा था वो 1 बन गया, वो 1 अज्यूम कर लेंगे तो फिर x क्या हो गया 1 into 100/10. अब ये 100/10 को सिमिलर हो गया, ये एक्चुअली जो इंटरेस्ट था ना रिटर्न था उसका रेसिप्रोकल हो गया, उसका उल्टा बन गया. इट मीन्स योर परचेज इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द एन्यूटी इज 1. अभी हम एन्यूटी एंड योर परचेज से क्या कंक्लूड किए, our capitalized value which we have initially invested is equal to the annuity into the year purchase. It's very easy formula. I hope you understood this. Next is sinking fund. Again I'll be using an example over here to make our definition more simpler. Suppose एक person है उसने अभी एक 1 BHK फ्लैट लिया 50 lakhs में, लेकिन 5 years के बाद उसको एक बड़ा घर चाहिए, 2 BHK फ्लैट चाहिए. अभी प्रेजेंटली उसकी 1 BHK फ्लैट की प्राइस 50 lakh है. 5 years के बाद इन्फ्लेशन होगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी लेकिन साथ में डेप्रीसिएशन फैक्टर भी आ जाएगा. सो लेट्स अज्यूम कि उसकी 1 BHK फ्लैट की प्राइस 5 years के बाद 60 लाख रुपीज़ है. तो वो 60 लाख रुपीज़ में अपना 1 BHK सेल करेगा
क्योंकि उसको 2 BHK फ्लैट भी खरीदना है। और अज्यूम करते हैं एज पर हिज इन्वेस्टमेंट और उसकी सोर्स ऑफ इनकम वो 1.5 करोड़ तक का फ्लैट ले पाएगा। मतलब उसको और 5 इयर्स के बाद 90 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि 60 लाख रुपीस तो उसके हाथ में आ जाएंगे जब उसका वो प्रेजेंट फ्लैट सेल करेगा। अब ये 90 लाख रुपीस इधर वो लोन ले सकता है या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट होगी, बट अगर वो प्रेजेंट डे से ही इन्वेस्ट करेगा अपने नेक्स्ट एसेट के लिए 2 BHK के लिए, देन इट वुड बी इजियर फॉर हिम। So the sinking fund is the fund which is gradually accumulated for the replacement of the property at the end of its useful life। मतलब अभी उसका जो प्रेजेंट एसेट है 1 BHK फ्लैट है, लेकिन अभी उसको रिप्लेस करना है विद 2 BHK फ्लैट। सो जो भी फंड वो अक्यूमुलेट करेगा पीरियोडिकली, इधर मंथली और ईयरली, सो दैट फंड इज द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का नेक्स्ट यूज है कि वो उन पैसों से अपना लोन भी रीपे कर पाएगा। अभी सिंकिंग फंड कैसे क्रिएट करते हैं, तो इधर हम लोग किसी इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं, वहाँ से सिंकिंग फंड पॉलिसी निकलवा सकते हैं, या फिर हम लोग हमारे जो पैसे हैं वो मंथली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं टू गेन द हाईएस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू S इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अभी देखते हैं I क्या है। I इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट जो भी वो सेव करेगा फॉर हिज नेक्स्ट एसेट। S इज द टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा 90 लाख रुपीज था। I is the rate of interest. N is the number of years needed to accumulate the sinking fund. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था योर परचेज इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिंकिंग फंड फैक्टर भी आ जाता है योर परचेज में। दैट इज वाई योर परचेज इज इक्वल टू 1 अपॉन आई प्लस एस। आई तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड एस इज द सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। सिंकिंग फंड क्या है ये हम लोग ने पढ़ लिया, अभी हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। An old building has been purchased by a person at rupees 30,000 excluding the cost of the land. Calculate the amount of annual sinking fund at 4% interest assuming the future life of the building as 20 years and the scrap value of the building as 10% of the total cost of purchase. अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ एनुअल सिंकिंग फंड, मतलब हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। हम लोग को ये भी दिया है कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो 10% है, मतलब 30,000 का 10% तो हम लोग 20 साल के बाद रीगेन कर रहे हैं। मतलब 20 साल के बाद हमारा टोटल सिंकिंग फंड अमाउंट कितना होगा, 30,000 का 90% विच इज इक्वल टू 27,000 रुपीज। मतलब हमें अभी टोटल सिंकिंग फंड मिल गया 27,000 रुपीज। उसके अलावा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है 4% और बिल्डिंग की लाइफ भी दी है 20 ईयर्स। डेटा तो सब अवेलेबल है, तो हमें बस फॉर्मूला यूज करना है I इज इक्वल टू एस इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अभी ये वैल्यू सब पुटअप करेंगे फॉर्मूला में। टोटल सिंकिंग फंड जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है 27,000 इंटू इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट हम लोग को परसेंट में दिया है, यहाँ पे हम लोग डेसिमल में यूज करेंगे, डोंट फॉरगेट दिस, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 रेज टू 20 माइनस 1। सो हमारा आंसर है 907 रुपीज। मतलब हमारा एनुअल सिंकिंग फंड या फिर टोटल हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा एवरी ईयर, 907 रुपीज। अभी हर साल हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी एसेट से हम लोग रेवेन्यू फेच करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कुछ स्पेंड भी करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी देते हैं। सो दोज आर द आउटगोइंग्स। Outgoings are the expenses which are required to be incurred to maintain the revenue of the building. अभी देखते हैं कौन कौन से outgoings हैं। फर्स्ट टैक्सेस होते हैं, म्यूनसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट इज द रिपेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है, उसकी लाइफ स्पैन हमें बढ़ानी है, उसकी केयर रखनी है, दैट्स वाई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस, एग्जाम्पल द सैलरीज ऑफ द वॉचमैन और द क्लीनर। नेक्स्ट सिंकिंग फंड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीज। फिर मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस।
So our net income will be gross income minus outgoings. अभी outgoings में सारे के सारे जो taxes है, repair है या फिर sinking fund है, ये सारे add हो जाएंगे. फिर net income is equal to gross income minus addition of all the outgoings. I think I have discussed all the basics of valuation. I hope you understood it. If you have any doubts, please comment. And our numericals are remaining, which I'll be completing it in our next video so that you can be fully prepared for your exam. Thank you.